اور ناقص انتظام کے باعث اس گرمی میں عوام اذیت اور کرب کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ کیا حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی کی ہے، اور بالخصوص مکران اور رخشان ڈویژن میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ تفصیلات فراہم کی جائیں۔ اب میں جواب تو اسی وقت میں کوئی سوال کرتا جب مجھے وہ جواب دے دیتے، یا وزیر صاحب آ کے کچھ بول لیتے تو میں ابھی بیٹھے وہ نہیں ہے، وہ ابھی نہیں ہے منسٹر، سی ایم صاحب خود منسٹر ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ممکن نہیں ہے، وہ ابھی کیو ڈی کا چیئرمین ہے۔ جناب چیئرمین اس وقت یہ عوام اس وقت گواہ رہے کہ اس اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ مالی حوالے سے اخراجات آتے ہیں۔ اراکین اسمبلی دور دراز اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس اجلاس کو اٹینڈ کرنے آتے ہیں۔ بلوچستان کی عوام کی نظریں اس اسمبلی کے اجلاس کی طرف مبذول ہوتی ہیں کہ ان کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے سنجیدہ بحث ہوگا، ان کا کوئی جامعہ کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جناب والا، یہاں پر اس اسمبلی میں جن وزراء کو اسپیشل الاؤنسز ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو جناب والا اس لیے وزارتیں دی جاتی ہیں، مشاورتیں دی جاتی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری کی پوزیشن دی جاتی ہیں کہ وہ بلوچستان کے دقیق معاملات کو سمجھ کر ان کے حل کے لیے کیبنٹ میں، بجٹ میں، پالیسی میکنگ کے اداروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں۔ یہی غیر سنجیدگی جو یہاں پر ہے، یہی غیر سنجیدگی بلوچستان اسمبلی سے باہر بھی ہے، اور اس غیر سنجیدگی کے باعث مکران میں عید کے دن گوادر میں، پنجگور میں، خاران میں، نوشکی میں، واشک میں، تمام علاقوں میں جناب والا عید کے دن عورتیں اور بچے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بلوچستان کو بجلی کا جو حصہ ہے، بلوچستان کو وہ قانونی طور پر، آئینی طور پر دیا نہیں جا رہا، گو کہ ہم اس سے پہلے ہماری گیس بجلی کی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ میری بات میں آپ ہی جواب دیں، میرا بات میں نا، کیونکہ آپ ہی جواب دیں۔ نہیں، آپ سوال دریافت، آپ نے سوال دریافت کیا، ابھی کوئی جواب کوئی یہ سوال نہیں ہے، یہ توجہ دلا ہوا ہے، توجہ دلائے اپنی توجہ دلاؤ نوٹس کی بابت۔ اب میری بات تو سنیں چیئرمین صاحب، ایسے نہ کریں نا، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس پر سوال دریافت کیا، یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ کسی وزیر کی سرزنش کریں کہ آ جائے، بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں۔ جو پارلیمانی سیکرٹری کون ہے وزیر اس کا؟ جو بھی متعلقہ وزیر ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے سننے دیں۔ بلوچستان کے عوام عید کے دن عورتیں، بچے، بوڑھے مکران میں جو ہے آگ برپا ہے، قیامت خیز گرمی ہے، وہاں پر لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہاسپٹلز میں آپریشن کی سہولت نہیں ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رول آف پروسیجر کے مطابق چلیں۔ رولز آف پروسیجرز میں چھوڑے، رولز آف پروسیجر نہیں، کیسے چھوڑے؟ اس پر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے نا۔ بات سنیں، دیکھیں آپ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ سائڈ لینا بند کر دیں۔ نہیں، آپ اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق چلیں گے نا۔ اب میں بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس پر سوال دریافت کیا، کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے۔ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے جناب والا۔ توجہ دلاؤ نوٹس ایک بلوچستان کا آدھا بلوچستان، اور وہ بلوچستان جس کی سمندر کی وجہ سے، جس کے وسائل کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت قائم ہے۔ حکومتی ارکان میں سے کوئی ہے جو جواب دے توجہ دلاؤ نوٹس کا؟ کوئی ہے؟ ایک ایسا صوبہ جناب والا، جناب چیئرمین صاحب میری بات سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس وقت پاکستان میں 7,000 میگا واٹ بجلی جو ہے سرپلس ہے، اس وقت 7,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں سرپلس ہے۔ اس وقت بلوچستان میں یہ صورتحال ہے، 62% شہریوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ بلوچستان کے تمام شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے بجلی دستیاب نہیں ہے۔ ہم خود گئے ہیں، اراکین اسمبلی میرے ساتھ تھے، میرے حلقے میں گئے ہیں، نوشکی میں گئے ہیں، خران میں گئے ہیں، ڈال بندن میں گئے ہیں، سنیں سر، واشک گئے ہیں، ہم ذمہ دار اراکین اسمبلی۔ جناب والا وہاں پر جانوروں کی سی زندگی ہے لوگوں کی۔ ہم نے اسی وقت یہ بات کی تھی، یہ پی ایس ڈی پی کے انرجی سیکٹر ہے۔ اس وقت 170 ارب روپے کی جب پی ایس ڈی پی بنتی ہے، ہم نے کہا تھا کہ سندھ نے امپروومنٹ کر لی، سندھ ایس ٹی ڈی سی بنا دیا، سندھ ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی بنا دی، خیبر پختونخوا نے جو ہے ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کی کمپنی بنا دی، تاکہ اس لیے جو بجلی سرپلس ہے پاکستان میں سی پیک سے، وہ اپنے شہریوں تک پہنچا سکے۔ آپ اپنے شہریوں کو ماں سے وائے بھوک کے، پیاس کے، محرومی کے، اندھیروں کے، مایوسی کے، پیاس کے اور خودکشیوں کے دے کیا رہے ہیں؟ یہ بہت سنجیدہ ایک میں قرار توجہ دلاؤ نوٹس لایا ہوں۔
کہ جو پاکستان میں سرپلس بجلی ہے وہ کیوں بلوچستان کو نہیں ملتی. 2000 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن سی پیک کی مد میں ڈالے گئے تھے. جناب والا یہ دونوں 2000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنیں این ٹی ڈی سی جو ہمارا نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کی کمپنی ہے, وہ کراچی میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو پنجاب لے جائے گا, جو پنجاب سے بجلی پیدا ہوگی سندھ لائے گا. ہم یہاں اچھوت ہیں کیا؟ بلوچستان کوئی اچھوت صوبہ ہے؟ آپ شودر اور برمن بنے ہوئے ہیں, ہمیں بجلی نہیں دیتے. جب ہماری گیس نکالنی ہوتی ہے آپ بڑے بڑے پائپ لائن بچھا کے سیکیورٹی کے سار میں آپ لے جاتے ہیں, کوئلہ ہے سیکیورٹی کے سار میں لے جاتے ہیں. کسی دن یہ محبت دکھائیں بلوچستان والوں کو, 14 اگست ہے پرسوں, کہ ابھی یہ محبت دکھائیں کہ سیکیورٹی کے سار میں بجلی لائیں, بلوچستان کے محروم لوگوں کو دیں, اندھیرے میں رہنے والے لوگوں کو دیں, روشنی لے جائیں ان گدانوں میں, پھر بلوچستان میں امن آئے گا. بلوچستان کو ایک تو آپ نے یہ ہے 1.5 ارب روپے صرف ڈالے گئے انرجی سیکٹر میں. اس پی ایس ڈی پی میں یہ جو آپ کا 2021 اور 22 کا پی ایس ڈی پی ہے, ہم جب ان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ سنجیدہ بات کریں, آپ نے بلوچستان کے اندر ماں سوائے ایک ضلع میں 1 ارب روپے کے جو ہیں انہوں نے بجلی کی اسکیمات ڈالی ہیں, باقی بلوچستان کے 32 اضلاع میں 1 روپے کی بھی اسکیم نہیں ڈالی ہے. یہ کیسا بلوچستان ہے جس کو آپ چلانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کم از کم 20 سے 25 کروڑ 30 کروڑ روپے ہر ضلع میں ہر حلقے میں دیں بجلی کی نظام کی بہتری کے لیے. کیسکو والوں کے ساتھ بیٹھیں, ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائیں, پالیسی بنائیں, اسی کو بیس بنا کر اپنی پی ایس ڈی پی میں 15 سے 20 ارب روپے انجیکٹ کریں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو بجلی مل سکے. گوادر کی ماؤں بہنوں نے کوئی جرم کیا ہوا ہے؟ آپ ان کے بچوں کو ساری رات چھاپے مارتے ہیں, ان کو گھروں سے نکالتے ہیں, دن کو ان کی ماؤں بہنوں کو مجبور کرتے ہیں وہ جا کے پہاڑوں سے لکڑیاں چنیں, دوپہر کو جا کے کنویں سے پانی نکالیں, شام کو آ کے لکڑیاں جلائیں, ان کے آنکھوں میں آنسو آئیں توئے کی وجہ سے. یہ بلوچستان کو آپ نے زندگی دی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں بلوچستان میں خوشحالی آئے, امن آئے. کیسے آئے گا امن؟ وزیر داخلہ صاحب پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات کوئی جواب دیں گے آپ یا اس کو میں آگے دے دے؟ کون جواب دیں گے؟ کوئی جواب دے کوئی ہے جواب دینے والا؟ بلوچستان کی کیس متعلقہ پارلیمانی سیکریٹری اور منسٹر موجود نہیں ہے. اور آپ نہیں جناب چیئرمین, آپ رولنگ دیں کہ مکران خاران تمام ایکٹنگ تمام کے لیے برتے پھر وہ جو ہے دوسرے ارکان کو اب بات کرنے. جناب والا ایکٹنگ تو چاکلیٹ میں ہوتا ہے, ایکٹنگ تو 13 لاکھ کے کیل میں ہوتا ہے, ایکٹنگ تو ہے بیٹ میں ہوتا ہے, ایکٹنگ تو 2 سے 4 ارب روپے کے پی ڈی اے کے اسٹیم میں ہوتا ہے. ایکٹنگ ہم کرتے ہیں ابھی 3 سے 6 ارب روپے بلوچستان میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. آپ تمام جناب والا اس وقت ہم خاموش رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بلوچستان کی حکومت کی کرپشنز کا نہیں ہے علم. غلط بیانی سے بات کرتے ہیں اس اسمبلی میں وقار کو, یہ جو ہے مروز خاطر آپ نے تصویریں نہیں دیکھی ہیں؟ میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, ایک ٹرانسفارمر ہم اپنے حلقے میں نہیں دے سکتے, بجلی کی ایک لائن نہیں ہے, وہاں پر احتجاج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھا ہے عمل کلمت, یہ بھی اٹھے گا, آپ کو گوادر کی صورتحال بتائے گا. سریاب میں ٹرانسفارمر نہیں ہے. بلوچستان آپ نہیں کر سکتے. بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں, بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں, کنویں سے پانی نکالتے ہیں. بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں, ابھی تک لکڑی سے جو ہے روٹیاں پکاتے ہیں. بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں, ابھی تک لالا رشید بتائے گا. آج اس کی باتوں میں 1% نہ صداقت ہے, اس کی باتوں میں 1% چیئرمین صاحب لالا رشید ہماری مائیں بہنیں لکڑیاں جلاتی ہیں. صحیح ہے, گوادر میں پانی ہے. جی لالا رشید صاحب. چیئرمین, اسمبلی کا بھی اور ناقص انتظام کے باعث اس گرمی میں عوام اذیت اور کرب کی صورتحال سے دوچار ہیں. کیا حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی کی ہے, اور بالخصوص مکران اور رخشان ڈویژن میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ تفصیلات فراہم کی جائیں. اب میں جواب تو اسی وقت میں کوئی سوال کرتا جب مجھے وہ جواب دے دیتے, یا وزیر صاحب آ کے کچھ بول لیتے تو میں ابھی بیٹھے وہ نہیں ہے, وہ ابھی نہیں ہے منسٹر, سی ایم صاحب خود منسٹر ہیں, پارلیمانی سیکرٹری ممکن نہیں ہے, وہ ابھی کیو ڈی کا چیئرمین ہے. جناب چیئرمین اس وقت
इस वक्त ये अवाम इस वक्त गवाह रहे कि इस असम्बली का जब इजलास होता है इस पे बहुत ज़्यादा माली हवाले से अखराजात आते हैं। अरकान असम्बली दूर दराज अपने हल्को इलाकों को छोड़कर इस इजलास को अटेंड करने आते हैं। बलूचिस्तान की अवाम की नज़रें इस असम्बली के इजलास की तरफ मबजूल होती हैं कि उनके मसाइल और मुश्किलात के हवाले से संजीदा बहस होगा, उनका कोई जामिया कोई अल निकल आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं जनाब वाला, यहाँ पर इस असम्बली में जिन वज़रा को स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, उनको जनाब वाला इसलिए वजारतें दी जाती हैं, मुशावरतें दी जाती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी की पोजीशन दी जाती हैं कि वो बलूचिस्तान के दकीक मामलात को समझकर उनके अल के लिए कैबिनेट में, बजट में, पॉलिसी मेकिंग के इदारों में बैठ के फैसले करें। यही गैर संजीदगी जो यहाँ पर है, यही गैर संजीदगी बलूचिस्तान असम्बली से बाहर भी है। और इस गैर संजीदगी के बायस मकुरान में ईद के दिन ग्वादर में, पंजगूर में, खारान में, नोशकी में, वाशुक में, तमाम इलाकों में जनाब वाला ईद के दिन औरतें और बच्चे बाहर निकले हुए थे। बलूचिस्तान को बिजली का जो हिस्सा है, बलूचिस्तान को वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दिया नहीं जा रहा। गो कि हम इससे पहले हमारी गैस बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होता है। आपके जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। मेरी बात में आप ही जवाब दें, मेरा बात में ना, क्योंकि आप ही जवाब दें। नहीं, आप सवाल दरियाफ्त, आपने सवाल दरियाफ्त किया, अभी कोई जवाब नहीं। ये सवाल नहीं है, ये तवज्जो दिला हुआ है। तवज्जो दिलाए अपनी, तवज्जो दिलाओ नोटिस के बाबत। आप मेरी बात तो सुने चेयरमैन साहब, ऐसे न करें ना, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। मैं एक संजीदा बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं तरीकाकार यही है कि आपने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सवाल दरियाफ्त किया, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। आप किसी वजीर की सरजनिश करें क्या जाए? बिल्कुल, मैं कंडेम करता हूँ। जो सेक्रेटरी कौन है वजीर इसका? जो भी मुतलका वजीर है वो नहीं आया। अगर नहीं है तो मुझे बात करने दे, आप मुझे सुनने दे। बलूचिस्तान के अवाम ईद के दिन औरतें, बच्चे, बूढ़े मकुरान में जो है आग बरपा है, कयामत खेज गर्मी है, वहां पर लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन की सहूलत नहीं है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आप रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलें। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में छोड़े, रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं, कैसे छोड़े? इस पर आप ही कह रहे थे कि आपने इसकी पाबंदी करनी है ना। सुने, देखिए आप कैसे छोड़ सकता हूं? आप साइड लेना बंद कर दें। नहीं, आप इसके मुताबिक चले, इसके मुताबिक चलेंगे ना। अब मैं बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप ये तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सवाल दरियाफ्त का कोई जवाब देने के लिए नहीं है। सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है जनाब वाला। तवज्जो दिलाओ नोटिस, एक बलूचिस्तान का आधा बलूचिस्तान, और वो बलूचिस्तान जिसकी समंदर की वजह से, जिसके वसाइल की वजह से पाकिस्तान की अहमियत कायम है। हुकूमती अरकान में से कोई है जो जवाब दे तवज्जो दिलाओ नोटिस का? एक कोई है? एक ऐसा सूबा जनाब वाला, जनाब चेयरमैन साहब, आप मेरी बात सुने, आपको समझ आएगी। इस वक्त पाकिस्तान में 7000 मेगावाट बिजली जो है सरप्लस है। इस वक्त 7000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में सरप्लस है। इस वक्त बलूचिस्तान में यह सूरत हाल है, 62% शहरियों के पास बिजली नहीं है। बलूचिस्तान के तमाम शहरों में 2 से 3 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं है। हम खुद गए, अरकान असम्बली मेरे साथ थे, मेरे हल्के में गए हैं, नोशकी में गए हैं, खरान में गए हैं, दालबंदन में गए, सुने सर, वाशुक गए हैं, हम जिम्मेदार अरकान असम्बली। जनाबे वाला, वहां पर जानवरों की सी जिंदगी है लोगों की। हमने उसी वक्त ये बात की थी, ये पीएसडीपी के एनर्जी सेक्टर है। इस वक्त 170 अरब रुपए की जब पीएसडीपी बनती है, हमने कहा था कि सिंध ने इंप्रूवमेंट कर ली, सिंध एसटीडीसी बना दिया, सिंध ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी बना दी, खैबर पख्तूनख्वा ने जो है ट्रांसमिशन और डिस्पैच की कंपनी बना दी, ताकि इसलिए जो बिजली सरप्लस है पाकिस्तान में सीपैक से, वो अपने शहरियों तक पहुंचा सके। आप अपने शहरियों को मां सिवाय भूख के, प्यास के, महरूमी के, अंधेरों के, मायूसी के, प्यास के और खुदकुशियों के दे क्या रहे हैं? ये बहुत संजीदा एक मैं करार तवज्जो दिलाओ नोटिस लाया हूं कि जो पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है वो क्यों बलूचिस्तान को नहीं मिलती। 2000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन सीपैक की मद में डाले गए थे जनाबे वाला। ये दोनों 2000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें एनटीडीसी जो हमारा नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच की कंपनी है, वो कराची में जो बिजली पैदा होती है उसको पंजाब ले जाएगा, जो पंजाब से बिजली पैदा होगी सिंध लाएगा। हम यहाँ अछूत हैं क्या? बलूचिस्तान कोई अछूत सूबा है? आप शूदर और बरमन बने हुए हैं, हमें बिजली नहीं देते। जब हमारी गैस निकालनी होती है, आप बड़े बड़े पाइपलाइन बिछा के सिक्योरिटी के सार में आप ले जाते हैं, कोयला है सिक्योरिटी के सार में ले जाते हैं। किसी दिन ये मोहब्बत दिखाएं बलूचिस्तान वालों को, 14 अगस्त है परसों, कि अभी ये मोहब्बत दिखाएं कि सिक्योरिटी के सार में बिजली लाएं, बलूचिस्तान के महरूम लोगों को दें।
अंधेरे में रहने वाले लोगों को दे, रोशनी ले जाए उनके दानों में, फिर बलोचिस्तान में अमन आएगा। बलोचिस्तान को एक तो आपने ये है 1.5 अरब रुपए सिर्फ डाले गए एनर्जी सेक्टर में इस पीएसडीपी में। ये जो आपका 2021 और 22 का पीएसडीपी है, हम जब इनको कह रहे थे कि बैठ के हमारे साथ संजीदा बात करें, आपने बलोचिस्तान के अंदर मां सिवाय एक जिले में 1 अरब रुपए के जो है इन्होंने बिजली की स्कीमात डाली हैं, बाकी बलोचिस्तान के 32 अजला में 1 रुपए की भी स्कीम नहीं डाली है। ये कैसा बलोचिस्तान है जिसको आप चलाना चाहते हैं? हमने कहा था कम से कम 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए हर जिले में हर हल्के में दें बिजली की निजाम की बेहतरी के लिए। कैस्को वालों के साथ बैठे, एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएं, पॉलिसी बनाएं, उसी को बेस बनाकर अपनी पीएसडीपी में 15 से 20 अरब रुपए इंजेक्ट करें ताकि बलूचिस्तान के लोगों को बिजली मिल सके। ग्वादर की माओ बहनों ने कोई जुर्म किया हुआ है? आप उनके बच्चों को सारी रात छापे मारते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, दिन को उनकी माओ बहनों को मजबूर करते हैं वो जाके पहाड़ों से लकड़ियां चुने, दोपहर को जाके कुएं से पानी निकालें, शाम को आके लकड़ियां जलाएं, उनके आंखों में आंसू आए धुएं की वजह से। ये बलूचिस्तान को आपने जिंदगी दी है, उसके बाद कहते हैं बलूचिस्तान में खुशहाली आए, अमन आए। कैसे आएगा अमन? वजीर दाखिला साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात कोई जवाब देंगे आप या इसको मैं आगे दे दे? कौन जवाब देंगे? कोई जवाब दे, कोई है जवाब देने वाला? बलूचिस्तान की गैस मुतल्लिका पार्लिमानी सेक्रेटरी और मिनिस्टर मौजूद नहीं है। और आप नहीं जनाब चेयरमैन, आप रूलिंग दे कि मकरान खारान तमाम एक्टिंग तमाम के लिए भर दें, फिर वो जो है दूसरे अरकान को आप बात कर जनाब वाला। एक्टिंग तो चॉकलेट में होता है, एक्टिंग तो 13 लाख के कील में होता है, एक्टिंग तो है बैट में होता है, एक्टिंग तो 2 से 4 अरब रुपए के पीडीए के स्कीम में होता है। एक्टिंग हम करते हैं अभी 3 से 6 अरब रुपए। बलूचिस्तान में लोगों को पीने का पानी नहीं है। आप तमाम जनाब वाला इस वक्त हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बलूचिस्तान की हुकूमत की करप्शन का नहीं है इल्म। गलत बयानी से बात करते हैं इस असेंबली में वकार को, ये जो है मरूज आपने तस्वीरें नहीं देखी है? मैं अपने हल्के में जाता हूँ, एक ट्रांसफार्मर हम अपने हल्के में नहीं दे सकते, बिजली की एक लाइन नहीं है, वहां पर एहतजाज में लोग बैठे हुए हैं। ये वैसा अमल कलमत ये भी उठेगा, आपको ग्वादर की सूरत हाल बताएगा। सरियात में ट्रांसफार्मर नहीं है। बलूचिस्तान आप नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के लोग बाशऊर हैं, बलूचिस्तान के लोग बाशऊर हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। बलूचिस्तान के लोग बाशऊर हैं, अभी तक लकड़ी से जो है रोटियां पकाते हैं। बलूचिस्तान के लोग बाशऊर हैं, अभी तक लाला रशीद बताएगा। आज इसकी बातों में 1% ना सदाकत है, इसकी बातों में 1% चेयरमैन साहब सही है। बलूचिस्तान में 650 फीडर्स हैं, जो 2-4 फीडर्स बलूचिस्तान में हैं, उन खुशकिस्मत फीडर्स में से आप वहीं पे रहते हैं जहां पर 24 घंटे बिजली है। वजूहात क्या है हम ये नहीं बताएंगे। देखें, बलूचिस्तान में ये आईन कहता है, आईन के बुनियादी उसूल हैं, बुनियादी हकूक का बाब है। हमने कोई गलत बात नहीं की। चलो हम थोड़े से आहिस्ता लहजे में इनको समझाना चाह रहे हैं दोबारा कि आप एक इजलास बुलाएं। पाकिस्तान में 8,000-9,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। हम जब उनके साथ बात कहते हैं, कहता है आपकी सूबाई हुकूमत जो है बिजली लेना नहीं चाहती। अच्छा, अब सूबाई हुकूमत कैसे बिजली लेगी? 18वीं तरमीम के बाद ये सारा जब हुआ, ये डेस्कोज बने, ये पेस्कोज जो बने, ये प्राइवेट जो जितने इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशंस बनी, बलूचिस्तान में सिर्फ एक है जिसको कहते हैं कैस्को। आप कैस्को के साथ पूरे 3 सालों में एक इन्होंने 2 घंटे की भी मीटिंग नहीं की कि बलूचिस्तान की एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस क्या है। आप इलेक्ट्रिसिटी कैस्को वालों के साथ एक 4 से 6 घंटे की मीटिंग यहाँ रखवा दें, वो आपको बलूचिस्तान की बिजली की बीमारी बता देंगे। जनाबे वाला, अगर आप उनसे बिजली बलूचिस्तान के लिए 2 से 4,000 यानी हमें 1,000 मेगावाट, सर मैं एक छोटा सा नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, सर बहुत अच्छी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये एनर्जी पाकिस्तान एनर्जी बुक 2019 है, इसका पेज नंबर है 96। आजाद जम्मू कश्मीर जो है वो पश्चिम तहसील का जो बरशोर तहसील है उससे भी छोटा है रकबे के एतबार से। ये उसके डोमेस्टिक का मैं आपको बताता हूं कंजप्शन। ये गरीब बादशाह लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड वाले हैं। ये उसको कहें पढ़े टेबल 5.7 सेक्टरल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय रीजन प्रोविंस 2018 and 19।
डोमेस्टिक सेक्टर में पंजाब में 35,239 गीगावाट आवर्स जो हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक में यानी घरेलू में मैं आ रहा हूं। सिंध में 11,051 ये जो है गीगावाट आवर्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6,042 गीगावाट आवर्स वो इस्तेमाल होते हैं एनर्जी के हवाले से। बलोचिस्तान में जनाबे वाला सिर्फ 557 गीगावाट आवर्स जो हैं ये बिजली के जो हैं अब इस वक्त बलोचिस्तान को दिए जा रहे हैं। अब आगे सुने, आजाद जम्मू कश्मीर जो ने कहा कि बलोचिस्तान के किसी एक तहसील से भी रकबे के एतबार से छोटा है, उसके 795 गीगावाट पर आवर्स जो हैं वो जनाबे वाला इस्तेमाल करता है। शर्म की बात है कि इतना बड़ा सूबा जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान का जूमर, पोटेंशियल, कैलिफोर्निया है, ये बलोच पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, खुशहाल है, रोशन हो, इमर्ज हो, रोशनी कहां से आएगी जनाबे वाला? चांद की और सितारों की रोशनी हमारे आबा अजदाद लाखों सालों से देख रहे हैं। हुकूमतों और रियासत और मुमलिकत की ताल्लुक लोग बलोचिस्तान के लोगों के साथ आप अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं 10,000 दफा ये बात कह चुका हूं सेनेट से लेकर आज तक कि पाकिस्तान अगर लोगों के घरों में जाना चाहता है तो वो बिजली की तार से जाएगा। पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों के दिलों में ले जानी है, वो पानी के पाइपलाइन से जाएगा। बोलो पाकिस्तान की मोहब्बत अब किसी के दिल में ले जानी है, वो अच्छी कुशादा सड़क से, महफूज सड़क से जाएगा। पाकिस्तान की मोहब्बत अगर बलूचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में ले जाना है तो जनाबे वाला वो अच्छे तालीम के निज़ाम से, किताबों से जाएगा, उस्तादों से जाएगा। आपने बलूचिस्तान के रियासत का ताल्लुक कैसे जुड़ता है लोगों के साथ? बंदूकों से नहीं जुड़ता, छावनियों से नहीं जुड़ता, चेक पोस्टों से नहीं जुड़ता, ये 2-4 किस्म के जो 150 अरब की जाली स्कीमात से रियासत, मुमलिकत का तसव्वुर और रिश्ता शहरियों से नहीं जुड़ता। हमने कौन सी गलती की इनको समझाने के लिए कि आप अमन चाहते हैं? रोजाना बलूचिस्तान में अमन का फार्मूला भी हमारे पास है। बलूचिस्तान के साथ जो बेइंसाफियां हो रही हैं उन बेइंसाफियों को खत्म करें। मैं जब अपने हल्कों में जाते हैं, आप शहरी हल्के से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपको अल्फिया कहूंगा। मैंने वापडा वालों को हाथ जोड़ा है कि ये शरीफ लोग मेरे मेहमान है, खारान में बिजली बंद न कर देना, इतनी गर्मी है, कुछ दोस्तों की आदत नहीं है, बाहर सो नहीं सकते, हम तो चारपाई लगा के, तो हमने इनसे मिन्नतें की हैं। आप तसव्वुर करें कि बलूचिस्तान में सूरत हाल ये है। मुझे लोग फोन करते हैं डॉक्टर साहिबान बलूचिस्तान के इंटीरियर से कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, आप वापडा वालों को कहें इस हॉस्पिटल में फीडर में 2 घंटे के लिए बिजली इजाफी दे दे। मुझे जमींदार फोन करते हैं कि हमारे बच्चे पानी के लिए मोहताज हैं, हमारी लाशें पड़ी हुई हैं, धोने के लिए पानी नहीं है, लाशों को तदफीन। बलूचिस्तान में जो एनर्जी है ये बलूचिस्तान की रूह है। तवानाई जो है वो किसी भी माशरे की रूह के मुतरादिफ है। आपने पूरे पीएचडीपी में सिर्फ 1.25 अरब रुपए, अगर आप कहते हैं इसकी कॉपी दे दूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। 1.25 अरब रुपए की स्कीमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बिजली की रख दी। मालूम है मुझे। हम ये जो सारे लोग बैठे हैं बशमूल इनके, वो मकरान के नुमाइंदे भी बैठे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मकरान से सारी दौलत ली जाई गई, डेरा बुगटी से ले जाया गया, कोलू से भी ले जाया जा रहा है, चागी से भी ले जाया जा रहा है। जब बलूचिस्तान के वसाइल की बात होती है तो सीना बलूचिस्तान का हमारा सबसे बड़ा है। फिर जब बलूचिस्तान को देने की बात आते हैं कहता है आप बिल नहीं देते, आपके पास जो है आपका सूबाई हुकूमत। और मैं गलती मैं समझता हूं इस वक्त बलूचिस्तान अगर पसमानदगी का शिकार है, 3 सालों में जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों को दरबदर इस हुकूमत ने किया है, खुदावंद तबारक ताला मेरी दुआ है कभी ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि लोगों को जानबूझकर रेवड़ियों की दुकान बनाकर पीएचडीपी जिस तरह बनाई गई, आप कैसे बलूचिस्तान की आवाम को रोशनी देंगे? तो मैं आपसे जनाब चेयरमैन ये गुजारिश करता हूं कि आप एक रूलिंग दें कि हुकूमत बलूचिस्तान एनर्जी बुक 2019-19, मेरे पास इसकी कोई 20 साल का रिकॉर्ड मेरी लाइब्रेरी में पड़ा, इनके पास नहीं होगा, एनर्जी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मेरे पास भिजवा दें इनको। मैं इनको बलूचिस्तान की बिजली के हवाले से जो इस्तेसाल हमारे साथ हो रहा है, जमींदारों के साथ हो रहा है, घरेलू सार्फिन के साथ हो रहा है, सनतकारों के साथ हो रहा है, उनको हम दिखा देंगे। ये बैठ के एक जामा मंसूबा बनाएं, क्रेडिट भी आप ले लें, ग्रिड भी आप बनाएं, ट्रांसफार्मर भी आप लगाएं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को जिले को 30 से 40 करोड़ इसी बजट में रिवाइज करें। 170D के तहत हमने जो यहां पर पेश किया था होल कमेटी का, वो इसीलिए किया था। आप वजीर आला साहब ने मुझे चैलेंज किया था बजट बनाए, वो 170D हमने इसीलिए पेश किया। जब आप कमेटी ऑफ ऑल बनाएंगे, हम अपना बजट लाके आपको दिखाएंगे कि बलूचिस्तान की खुशहाली का कैसा प्रोग्राम हमारे पास है। ये इस तरह की जाली पीएचडीपी से बलूचिस्तान को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं आप, तो अंधेरे में धकेल रहे हैं। जनाब चेयरमैन आप रूलिंग दें कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस ये जो मैंने रख्शान डिवीजन, मकरान डिवीजन का जिक्र किया, बिजली के बहरान से निपटने के लिए खुसूसी
इकदामात किए जाएं, खुसूसी फंड्स फराहम किए जाएं और कैस्को और ईरान की हुकूमत के साथ इस सिलसिले में फौरी तौर पर राब्ता किया जाए। ये रूलिंग तो आप दे सकते हैं, मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसमें चूंकि मिनिस्टर नहीं, इसमें तो कमेटी भी बनाई थी हमने, एक कमेटी जो वो वफाक में जाना था ओवरऑल जो, लेकिन इसमें केस्को की जो वजाहत आई है ये घरेलू सार्फिन का है।